नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एलजी मनोज सिन्हा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि एलजी कई विभागों में हस्तक्षेप कर रहे हैं और ये कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है। सीएम ने स्पष्ट किया है कि केवल प्रशासनिक मामलों में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रीय मामलों में भी एलजी की दखलंदाजी देखी जा रही है। उमर अब्दुल्ला ने लोक भवन से जुड़े मामलों में भी तनावपूर्ण स्थिति का जिक्र किया है। इसके बावजूद उन्होंने ये कहा कि केंद्र के साथ जम्मू कश्मीर का रिश्ता बेहतर बना हुआ है और दोनों पक्षों के बीच संवाद जारी है। सीएम ने इस दखलंदाजी को राज्य प्रशासनिक कार्यों में बाधा बताते हुए संतुलित और सहयोगपूर्ण प्रशासन की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने भरोसा जताया है कि ये स्थिति सुधार योग्य है। Government of India has been sort of well disposed towards the government of Jammu and Kashmir and towards Jammu and Kashmir. So no complaints there. Unfortunately, the same has not been true in terms of our working relationship with the Lieutenant Governor. In spite of the fact that he has on numerous occasions publicly said that he is only responsible for security and law and order and everything else is the domain of the elected government, that has not translated on the ground. I can name institutions that should ordinarily have transferred to the elected government that haven't so far. Can you give us some examples of things that you wanted to do but couldn't? Well, the J&K Power Development Corporation. I am the power minister. It's a corporation that is part of the ministry, but the Lieutenant Governor is the chairman of that corporation. Shouldn't be. I was chairman of that corporation when I was chief minister. We have two universities, Jammu and Kashmir, I'll call them state universities, Baba Ghulam Shah Badshah and Islamic University of Science and Technology. The statutes of those universities meant that the chief minister was chancellor. After the elections, these universities should have transferred to the elected government. They haven't. He continues to be chancellor of those two universities. The Cultural Academy, he is chairman of the Cultural Academy, even though the culture department is with the elected government. The Director Information, he has appointed an IAS officer, even though the post is a JKAS, J&K Administrative Services, cadre post. But to deny us sort of control over the information department, he has put his own person in there. And most recently and surprisingly, I am the tourism minister. Now the tourism development authorities in various places should either be headed by me or somebody nominated by me. But he continues to hold on even to tourism development authorities. He's called a meeting of the Gulmarg Tourism Development Authority on the 21st of December. Now please tell me, somebody who says he is only responsible for security and law and order, what business does he have holding a tourism development authority? It is essentially interfering in the role of the elected government. But that's why I said that on the main issue of statehood, that has been, I mean, it's a matter of disappointment. We keep being told that at the appropriate time, but nobody tells us how they will assess what the appropriate time is. Tell us what the goalpost is. Tell us what we have to do to bring Jammu and Kashmir to the point where you can say that yes, this is the appropriate time. Is the appropriate time when the BJP is in power in Jammu and Kashmir? If that's the case, then tell us. Then tell us, be honest with us. Tell us that, look, until the BJP is in power in Jammu and Kashmir, statehood will not be restored. Then the people of Jammu and Kashmir are free to make their decision in the next election. We're not going to bring the BJP into power in this assembly. They're going to spend this period in the opposition. But in the next assembly election, make the choice. But we were told, the Supreme Court was told, Parliament was told, the people of India were told that this is a three-step process. Delimitation, election, statehood. Yeah. 2 steps have been completed. वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंद्र रैना ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा उपराज्यपाल पर लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। रविंद्र रैना ने कहा कि उमर अब्दुल्ला तल्ख लिहाजे में बेवजह के आरोप लगा रहे हैं जिनमें कोई सच्चाई नहीं है। आपसे लड़ाई झगड़े करने से कोई फायदा नहीं होगा और मुख्यमंत्री को ये समझना चाहिए कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।
वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक और ताज़ा बयान आप सामने आया जिसमें उन्होंने एलजी सरकार पर कई तरह के इल्ज़ाम लगाए। हमारे साथ बात करने के लिए रियासती भाजपा साबका सदर रन साहब, आज उमर साहब की तरफ से एक और बयान सामने आया। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि एलजी साहब कहते हैं कि उनके पास सिर्फ लाइन आर्डर है, मगर हर काम में उनकी इंटरफेयर देखने को मिलती है, चाहे बिजली डिपार्टमेंट हो, टूरिज्म डिपार्टमेंट हो, हर एक में उनकी इंटरफेयर देखने को मिलती है, मगर कहा जाता है सिर्फ कि उनके पास लाइन आर्डर है। किस तरह देखते हैं आप? मुझे लगता है कि उमर साहब को तलखी नहीं करनी चाहिए। उमर साहब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार है। मरकज के अंदर जो भी बड़े फैसले होते हैं उनमें उमर साहब को बुलाया जाता है। जब भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब का जम्मू कश्मीर में टूर होता है, बतौर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से गुफ्तगू होती है। ये बार बार की तनकीद, ये बार बार की तलखी, ये ठीक नहीं है। जम्मू कश्मीर यूटी है, मरकज के ज़ेरे इंतज़ाम जब यूटी को बनाया गया तो उसके कुछ रूल्स हैं। अब उन रूल्स को भी तो फॉलो करना है। और मुल्क में केवल जम्मू कश्मीर एक यूटी नहीं है, और भी 7-8 यूटीज हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि आपसी तलखी, आपसी लड़ाई झगड़े करने से कोई फायदा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है और तरक्की याफ्ता हो, और डेवलपमेंटल काम ने बड़े प्रोजेक्ट यहाँ होने चाहिए। मरकज की ओर से दिल खोलकर पैसा डेवलपमेंट के कामों के लिए जम्मू कश्मीर को दिया जा रहा है। और हमेशा से ही डेमोक्रेटिक सेटअप में, जमहूरी निज़ाम में, स्टेट गवर्नमेंट्स या यूटी गवर्नमेंट मरकजी गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं तो आवाम को फायदा होता है, लोगों के लिए वो बेहतर होता है। अब इलेक्शन खत्म हो गए हैं, अब अगले 4 साल जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार है। इसलिए आपसी तलखियां छोड़कर डेवलपमेंट की ओर फोकस करना चाहिए, गुड गवर्नेंस की ओर फोकस करना चाहिए। एलजी साहब भी जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी चाहते हैं, और चुनी हुई सरकार की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोगों ने तो उनको वोट दिए हैं। एक चीज और सामने आ रही है, ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा की सरकार अगर जम्मू कश्मीर के अंदर बनती तो रियासत का दर्जा मिल जाता, इसीलिए रियासत का दर्जा नहीं दिया जा रहा कि भाजपा की सरकार नहीं। देखिए, जमहूरियत में अवाम के पास ताकत होती है। अवाम ने उमर अब्दुल्ला साहब को मैंडेट दिया, उनकी सरकार बनी। रही बात जम्मू कश्मीर को यूटी से वापस स्टेट का दर्जा देने के लिए, ये सिर्फ सियासी एजेंडा नहीं है, ये केवल पॉलिटिकल इशू नहीं है, बहुत सारे और भी इसके कंसर्न्स हैं। जम्मू कश्मीर बॉर्डर स्टेट है, एक तरफ पाकिस्तान है, चाइना है। 35-40 साल बड़ी डिस्टर्बेंस लोगों ने देखी है, मुश्किल से मुश्किल तरीन दौर जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों ने देखा है। बड़ी मुश्किल से ये हालात पिछले 10-15 सालों में ठीक हुए हैं। इसीलिए ये इसकी सरकार होगी तो स्टेटहुड होगा, ये होगा तो ये होगा, ये कयास नहीं लगाना चाहिए। जो सरकारें जिस निज़ाम में हैं उनको वहाँ द बेस्ट करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। मेरी उमर साहब को एक रिक्वेस्ट है, वो बड़े लीडर हैं, वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, वो मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, मरकज की वाजपेयी साहब की हुकूमत में वो फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं। ये तलखियां ठीक नहीं है, ये तलखियों से कुछ भला नहीं होने वाला है। उनको लोगों की, आवाम की बेहतरी के लिए काम करना है, और बिलखुसूसन अपने उस मैनिफेस्टो जिसके ऊपर उनको वोट मिले हैं, उसमें तो गवर्नर साहब ने रोड़ा नहीं ना अटकाया है, उसकी बात होनी चाहिए ना। ठीक है, यूटी में लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, होम डिपार्टमेंट एलजी साहब के पास है, क्योंकि यूटी का रूल है। और रातों रात एलजी साहब अपनी जिम्मेवारियों को दरकिनार भी तो नहीं कर सकते, वो भी अकाउंटेबल हैं, वो भी एक कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं,
उन्होंने भी करके दिखाया है। तमाम सियासी जमातों की तरफ से रियासत के दर्जे की बहाली की मांग की जा रही है। युवा राजपूत सभा की तरफ से भी इसकी भाजपा क्यों खामोश है? भाजपा नहीं खामोश है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हमारे मोहतरम होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में कहा है। रियासी जिले में विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास और साथ ही साथ मानसिक तनाव को कम करने की दिशा में यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स विभाग द्वारा एक सराहनीय पहल की गई है। विभाग की ओर से जिले के विभिन्न सरकारी स्कूलों के 100 विद्यार्थियों को 5 दिवसीय ट्रैकिंग व शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम पर भेजा गया है। इस दौरान विद्यार्थी परिषद पर्यटन स्थल और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर जाकर जैसे कि पत्नीटॉप क्षेत्र के विभिन्न प्राकृतिक और दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करेंगे। इस विशेष भ्रमण दल को जिला विकास आयुक्त निधि मलिक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। रवाना होते समय विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला और सभी बच्चे बेहद खुश नजर आए। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को पढ़ाई के दबाव, मानसिक तनाव और एक रूप दिनचर्या से राहत देना है। 5 डेज रेजिडेंशियल कैंप जो है हमारा ट्रैकिंग का पत्नीटॉप में जो ऑर्गेनाइज किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की तरफ से हर साल ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो वहाँ ये बच्चे जो है हमारे साथ 5 दिन रहेंगे। इस जिंदगी की भागदौड़ से दूर ये बच्चे वहाँ नेचर को एंजॉय करेंगे, नेचर के साथ घुल मिल जाएंगे और आपस में, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलग अलग इंस्टीट्यूशन के बच्चे हैं, कोई माहौर के बच्चे हैं, अरनास के हैं, पौनी के हैं, रियासी प्रॉपर के हैं, तो आपस में इंटरेक्शन होगी। बच्चों का कल्चर जो है आपस में एक दूसरे का कल्चर बांटेंगे, अब बातचीत करेंगे, रहन सहन देखेंगे। तो ये सारी चीजें जो है बच्चे जो वहाँ जाके 5 दिन में ये बच्चे सीखेंगे। जी, पढ़ाई का इन पे बोझ रहता है, आपको पता ही है कि आजकल बच्चे पे एकेडमिक जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए, और बच्चे जो आजकल मोबाइल आप देखते हैं, बच्चे मोबाइल पे बड़ा डिपेंड रहते हैं, तो इन चीज़ों से दूर ले जाके बच्चों को थोड़ा हम फ्रेश करने की कोशिश करते हैं कि इनका माइंड फ्रेश हो जाए। और गवर्नमेंट जो है उनकी जो पहल है कि बच्चे जो है वो नेचर के साथ भी थोड़ा। डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पुंछ द्वारा स्पोर्ट्स स्टेडियम में अंडर 17 बॉयज क्रिकेट ट्रायल्स का आयोजन किया गया। जिले के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली युवा क्रिकेटरों ने इन ट्रायल्स में जोश के साथ हिस्सा लिया। इन ट्रायल्स का मकसद जिले में उभरती क्रिकेट प्रतिभाओं को पहचानना और उन्हें विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए मौका देना था। इस मौके पर डिपार्टमेंट के अधिकारी, कोच और सिलेक्टर्स मौजूद थे, जिन्होंने युवा खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस का रिव्यू भी किया। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स की तरफ से ट्रायल कम सिलेक्शन जो YSS का हर साल डिपार्टमेंट की तरफ से होता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो टीम बनती है, जो सिलेक्ट होते हैं, उन्हें मौका मिलता है UT लेवल पर पार्टिसिपेट करने का। उसी के तहत आज से हम 4 दिन का जो ट्रायल कम सिलेक्शन है, जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों पे जो अंडर 17 और 19 एज ग्रुप यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं आज 17 के ट्रायल में काफ़ी बच्चे हर एक जोन से, हर एक तहसील से, हर एक पंचायत से यहाँ बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर एक इंस्टीट्यूशन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो निश्चित ही जो आउटस्टैंडिंग बच्चे रहेंगे उन्हें मौका मिलेगा डिस्ट्रिक्ट की टीम में खेलने का और स्टेट लेवल पे और UT लेवल पे रिप्रेजेंट करना। YSS कप जो होने जा रहा है, जो हमारा डिपार्टमेंट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करने जा रहा है आने वाले दिनों में, उसी के कंसर्न में यहाँ पे आज डिस्ट्रिक्ट पुंछ में ये ट्रायल लिए गए और ये ओपन ट्रायल हैं। इससे पहले जैसे हमारे स्कूल की बच्चे ही पार्टिसिपेट कर पाते थे जब हमारे डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल होते थे, बट ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो नॉन स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट स्कूल नहीं भी जाते, वो भी इस जो ट्रायल्स में वो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे जो भी यंगस्टर हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल UT लेवल के लिए सिलेक्शन होती है और सभी आए और यहाँ ट्रायल हैं। यहाँ अंडर 17 का चल रहा है, अंडर 19 का कल होगा, गर्ल्स का भी अंडर। कठुआ में रेलवे रोड की ब्लैक टॉपिंग का काम पूरा होने के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। सड़क की खराब स्थिति के कारण वाहनों और पैदल चलने वालों को काफी परेशानी हो रही थी। आज इस मार्ग पर औपचारिक उद्घाटन विधायक डॉक्टर भरत भूषण ने किया। उन्होंने कहा कि रेलवे रोड की मरम्मत उनकी प्राथमिकताओं में शामिल थी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अब इस सड़क से जुड़ी अन्य सड़कों की मरम्मत और ब्लैक टॉपिंग का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। और इसका 20 लाख रुपया रखा। तो 1 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है बहुत ख़राब था, आगे भी ख़राब है थोड़ा, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमने इसको दी जो ज़्यादा ख़राब था। और ये आज मुझे खुशी है
कि ये 20 लाख रुपए का जो काम है तकरीबन 15 लाख रुपए में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने पूरा किया और उसको आज हमने विधिवत तरीके से उसका उद्घाटन किया। जेल वाला जो रोड है वहाँ भी खराबी है। ये सारा जो पैच वाइज थोड़ा वर्क है क्योंकि काफ़ी 7-8 किलोमीटर का स्ट्रेच है, इसमें इतने पैसे नहीं थे, तकरीबन 70-80 लाख रुपया उसका रखा हुआ है, तो उसमें पैच वर्क ही होना पॉसिबल था, वो हम कर रहे हैं। कठुआ के किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज जिले के डीसी से मुलाकात की है। इस बीच इस दौरान किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा और प्रशासन से जल्द कार्रवाई करने का आह्वान किया है। किसानों का कहना है कि औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाला गंदा पानी उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके कारण फसल की पैदावार घट रही है और कई लोग इससे संबंधित बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल ने डीसी से अनुरोध किया है कि इस पानी के रिसाव और प्रदूषण को तुरंत रोका जाए तथा प्रभावित किसानों को राहत प्रदान की जाए। डीसी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित विभागों को इस समस्या का समाधान करने के निर्देश जारी कर दिए। गुहार लगाते हैं कि उनको जो भी इंडस्ट्री के जो रूल हैं उसके अंदर वो इंडस्ट्री जो है वो जहाँ पे चालू करें, इंडस्ट्री जो है वो चलाएं और आम गरीब लोगों का किसानों का नुकसान जो है वो ना करें, जिसकी वजह से उस गंदे पानी की वजह से जमीन जो है वो काली है। उस गंदे पानी की वजह से जो उसके अंदर बदबू है, वहाँ कोई आदमी आ जा नहीं सकता। अगर वो आदमी कोई इंसान उस गंदे पानी के साथ हाथ जहाँ पाँव उसका टच हो जाता है तो इन्फेक्शन हो जाती है, खारिश जो है वो के साथ वो बीमार पड़ जाता है और कई जानवर जो हैं वो उस पानी की वजह से मर गए हैं और कई कनाल जमीन जो है जिसके ऊपर फसल लगी हुई है वो फसल जो है वो खराब हो रही है। हम इसी बात को लेके एडमिनिस्ट्रेशन के पास आए थे और हमें एडिशनल डी साहब ने आश्वासन दिया है और उन्होंने हदायत भी दी है कुछ कंसर्न अथॉरिटीज को, पोल्यूशन कंट्रोल, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स को कि वहाँ पे जाके मौका पर देखें और किसान की प्रॉब्लम का हल करें। ये उन्होंने कहा है। अगर ये हल जो है वो नहीं होता है आने वाले दिनों में तो किसान सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर। पुंछ जिले के किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। सब्जी की खेती में बढ़ती दिलचस्पी और बेहतर उत्पादन से उनकी आमदनी में इजाफा हुआ है, जिससे किसान बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। मगनार, धारा, जलास, सलूत्रा और अजोट जैसे कई इलाकों में किसानों ने सब्जी की खेती की और रुख किया है। गुलिस्तान न्यूज से बात करते हुए किसानों ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा किया गया मार्गदर्शन और खेती के आधुनिक तौर तरीकों से उनकी फसल में काफी सुधार आया है। खेतों में हरी भरी फसल ने न सिर्फ उन्हें वित्तीय फायदा पहुंचाया है बल्कि भविष्य के लिए भी उनकी उम्मीदें बढ़ गई हैं। लोग उनके पास अपने घरों से ताजी सब्जियां खरीदने आ रहे हैं। इन गाँव में इस बदलाव को कृषि क्षेत्र में एक नई उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। विकी ने पूछो वाला, विकी ने फोन कर पूछो, विकी नहीं बंसी को खत्म हो गए ना, एक यू है इशू में बीच फटना लगाना। सर मैं जलास का रहने वाला LOC के पास वार्ड नंबर 2 पे। तो सर मैं ये सब्जी लगाता हूँ। पहले खेतीबाड़ी का काम मतलब ये गेहूँ मक्की लगाते थे, अब सब्जी लगाते हैं। तो सब्जी में देखो इस टाइम थोड़ा रेट भी अच्छा है, तो ये लगाते हैं शलगम लगाते हैं और पत्ता गोभी लगाते हैं, फूल गोभी लगाते हैं और ये बैंगन लगाते हैं। बैंगन इस टाइम में आपने देखे हैं। तो और ये हो गया पत्ता गड़म और यही लहसुन हो गया, फूल गोभी होगी, यही मूली होगी। आइडिया सर कुछ डिपार्टमेंट की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्कीमें आई, तो उसकी वजह से उन्होंने भी कुछ हमें बताया कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो कुछ अपनी मेहनत भी की, तो ठीक चल रहा है सिस्टम। वो कब ठीक ही है, फायदा ही है। और यहाँ से आके यहाँ से ले जाते हैं लोग, आके सब्जी ले जाते हैं जो भी चाहिए। आपने देखा अभी आप जब आए थे तो मूली कितने बंदे, 3 बंदे थे, तो मैं खुद भी निकाल रहा था और भी निकाल रहे थे। तो यहीं से ले जाते हैं जो फंक्शन। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जहां पर पुंछ जिले में होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम पहल की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पशुपालन विभाग के पोल्ट्री कार्यालय में पंजीकृत किसानों को चूजों का वितरण किया जा रहा है। विभाग के अनुसार जिन किसानों ने पहले से पंजीकरण करवाया था उन्हें बिना किसी शुल्क के 10-10 चूजे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य किसानों को पारंपरिक खेती के साथ
पोल्ट्री फार्मिंग से जोड़ना है ताकि उनकी आमदनी के अतिरिक्त स्रोत विकसित हो सके। अधिकारियों का कहना है कि पोल्ट्री पालन से कम समय में बेहतर मुनाफा संभव है और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। किसानों ने इस योजना का स्वागत करते हुए कहा कि मुफ्त चूजों के वितरण से उन्हें रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यहाँ पे एक प्रोग्राम है HADP, हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके अंडर एक प्रोजेक्ट आता है P13 इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इसमें लोग अप्लाई करते हैं और उसमें एक एक्टिविटी आती है पोल्ट्री बर्ड्स की। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में बहुत सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं एग्रीकल्चर के रिलेटेड। उसमें जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की एक एक्टिविटी आ रही है पोल्ट्री बर्ड्स की, तो उसके तहत यहाँ पे लोगों ने डिफरेंट ब्लॉक से अप्लाई किया हुआ है और उनको प्रॉपर अप्रूवल मिला है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, और उसके बाद हमारे पास लिस्ट आती है और उनको फ्री ऑफ कास्ट 10 बर्ड्स यहाँ से हम 4 वीक के अराउंड जो ब्रूडिंग करने के बाद फ्री ऑफ कास्ट हम उनको प्रोवाइड करते हैं यहाँ। ये अभी हमारे पास अराउंड 1600 बर्ड्स हैं। प्रेफरेबली हम उन्हीं लोगों को देंगे जिनको उसमें अप्रूवल मिला हुआ है। 10 बर्ड एक बेनिफिशियरी को हमने देने हैं। पीर पंजाल में ये जो LIT बर्ड्स होते हैं, बड़े बैकयार्ड पोल्ट्री के लिए घर में बड़ी अच्छी ब्रीड है। ये लो इनपुट टेक्नोलॉजी बर्ड्स होते हैं और जो किचन वेस्ट है उसी पे ये थ्राइव करते हैं और सर्वाइव करते हैं। इसका काफ़ी फ़ायदा है, इसका बॉडी वेट भी ठीक रहता है और एग लेइंग कैपेसिटी भी इनकी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे जो आज आपको मुर्गा दिया है, पोल्ट्री की स्कीम थी, यहाँ से डिपार्टमेंट से फ़ोन किया गया था कि 10 बच्चे जो हैं वो फ्री ऑफ कास्ट दिए जा रहे हैं और हमने अप्लाई किया था, इसलिए 10 जो बच्चे में फ्री ऑफ कास्ट यहाँ से दिए गए। तो क्या फ़ायदा रहेगा इसको? इसमें जो है, चलो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। मैं तो समझता हूँ कि इससे ज़्यादा देने चाहिए थे डिपार्टमेंट को, और बढ़िया स्कीम है ये तो फार्मर के लिए। हाँ, ऐसे स्कीम फार्मर के लिए बड़ी फ़ायदा मानते हैं और इससे भी बढ़ चढ़ कर होना चाहिए। बिश्नाह क्षेत्र के अंतर्गत गांव देओली से सलैड़ तक जाने वाली माइनर नहर में पानी न छोड़े जाने के विरोध में सलैड़ गांव के किसानों ने आज जोरदार प्रदर्शन किया है। किसानों का कहना है कि पिछले कई दिनों से नहर में पानी पूरी तरह बंद है, जिससे खेतों में खड़ी फसलें सूखने की कगार पर पहुंच गई हैं। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आरोप लगाया है कि सिंचाई विभाग को बार-बार अवगत कराने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही नहर में पानी नहीं छोड़ा गया तो उन्हें भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। इस दौरान किसानों ने प्रशासन से भी हस्तक्षेप की मांग की है और कहा कि समय पर सिंचाई न मिलने से उनकी मेहनत पर पानी फिर सकता है। इरिगेशन डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट। जहां हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट के खिलाफ ये प्रोटेस्ट किया है कि हमारे एरिया के अंदर, जबकि ये हमारी 13D है और माइनर 13D, जबकि पीछे जो बड़ी नहर है वहाँ ही पानी नहीं है। पहले ये पानी डिपार्टमेंट दिसंबर के लास्ट में बंद करता था, अब इन्होंने पहले 1 महीना बंद कर दिया है और किसान जो है वो बहुत परेशान है, क्योंकि खेतों में पानी लगाना है, गंदम की फसल जो सूख रही है, जो खाद डाली है उसका उल्टा नुकसान हो रहा है। और इसलिए हमारी आज ये डिपार्टमेंट से अपील है, सरकार से ये अपील है कि किसानों की सुविधा के लिए फसल ज्यादा हो, इनको पानी दिया जाए और नहरों की सफाई भी कराई जाए। सफाई बाद में, लेकिन पहले पानी दिया जाए ताकि किसान जो है वो अपनी फसलों में पानी लगाए और गंदम की फसल जो है वो 80 पैदावार हो। इसलिए आज हम ये सरकार से अपील कर रहे हैं बड़े अमन चैन से। तो चलिए बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। नमस्कार।